गाइस वेलकम बैक। सो आज नीट के लिए मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए टॉपिक लाई हूँ। नीट जो है आने वाला है विच इज़ ऑन संडे। तो फाइनल रिवीजन का काउंटडाउन ऑलरेडी हैज़ बिगिन। सो इसमें वी आर गोइंग टू डू टू थिंग्स। वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला इन फिजिकल केमिस्ट्री। सेकेंड इज़ गोइंग टू बी द रिएजेंट्स विच इज़ यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक उसके ऊपर वीडियो आएगा और एक आपका नेम रिएक्शंस के ऊपर आएगा. So let's get going, guys. We are going on to the first one, which is the most important formula in physical chemistry. This is going to help you do all the numericals. So अपनी paper और pencil उठाओ and let's get going. बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री में से कौन कौन से फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए? एटॉमिक मास यूनिट आपको पता होना चाहिए, विच इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 रेज टू पावर -24 ग्राम्स. एवरेज एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए, विच इज इक्वल टू m इंटू ए प्लस n इंटू बी अपॉन m प्लस n, वेयर m इज द रेशो ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, रेशो ऑफ फर्स्ट isotope, and A is the atomic mass of first isotope. N is going to be the ratio of second isotope. Okay. And B is going to be the atomic mass of the second isotope. So ये formula आप use कर सकते हो to calculate the average atomic mass. Number of gram atoms हम कैसे calculate करेंगे? Mass of the element in grams upon atomic mass of the element in grams. Number of gram molecules will be calculated as mass of the substance in grams upon molecular mass of the substance in grams. Another formula is कि molecular mass अगर आपको vapor density दी है तो molecular mass that is equal to 2 into vapor density. Density of the gas at STP will be molecular mass in grams upon 22.4 liters. 1 mole you know is equal to 6.02 into 10 raised to power 23. Number of moles of a substance can be calculated as mass of substance in grams upon mass of 1 mole of substance in grams. Number of moles can also be calculated as number of particles upon 6.02 into 10 raised to power 23. Mass of one atom of an element is gram atom of an element upon 6.02 into 10 raised to power 23. Mass of one molecule of a substance is equal to gram molecular mass of a substance upon 6.02 into 10 raised to power 23. Number of molecules कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर वॉल्यूम ऑफ अ गैस इन लीटर्स दिया है तो यू कैलकुलेट इट एज volume of gas in liters at NTP upon 22.4 liters into 6.02 to 10 raised to power 23. Atomic mass is equal to equivalent mass into valency. And then we have the atomic mass into specific heat, which is a constant number 6.4. N can be calculated as N is the वैलेंसी फैक्टर ओवर हियर, जिसको हम लोग यहाँ एन फैक्टर बुलाते हैं, विच इज कैलकुलेटेड एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन empirical formula mass. Percentage of the element is mass of element upon the total mass. m जो है यहाँ पे that is the total mass of A and B into 100. ठीक है. फिर आ जाते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे. स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे सबसे पहले फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा. This is the wave number which is equal to 1 upon lambda. Time period is equal to 1 upon wave number, and E that is equal to hc upon lambda according to the Planck's quantum theory. E is also equal to h nu. Delta E भी sometimes can be taken as h nu. So just see कि question में क्या दिया, and accordingly you can use the formula. Then we have 1 upon lambda that is equal to nu bar, which is a wave number, is equal to r 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. Always remember n1 is smaller than n2. Number of lines in a spectrum can be calculated as n2 minus n1 into n2 minus n1 plus 1 divided by 2. ठीक है. So n1 generally हम लोग लेते हैं as the ground state. n1 is the ground state जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और N2 जो है दैट इज द एक्साइटेड स्टेट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप करता है ऑन गेटिंग सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी. एंगुलर मोमेंटम MVR कैन बी कैलकुलेटेड एज NH अपॉन 2 पाई. फिर व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फॉर्मुलेशंस ऑब्टेन फ्रॉम बोहर्स एटॉमिक मॉडल? शॉर्ट क्वेश्चंस है इस सेक्शन में से.
which are valid for single electron species, the energy that will keep on increasing as the electron is moving away from the nucleus. So E1 is less than, E2 is less than, E3 is less than E4, but energy of transition एक opposite, एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन एक ऑपोजिट ट्रेंड फॉलो करती है, तो एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन इज गोइंग टू बी E2 E1 इज ग्रेटर देन E3 E2 ग्रेटर देन E4 E3, राइट? प्लीज कीप दिस इन माइंड, दिस इज इंपॉर्टेंट. रेडियस आप कैसे कैलकुलेट करते हो फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज दैट इज वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम? इट इज इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन z इंटू 0.529 एमस्ट्रॉन्ग, वेयर n इज द orbit in which the electron is present and z is going to be the atomic number. Okay, then एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? दैट इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. अगर आपको किलो जूल्स में कैलकुलेट करने के लिए दी है तो -1312 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, दिस इज किलो जूल्स पर मोल. और अगर हमें दी है कैलकुलेट करने के लिए in joules per atom, then that is going to be equal to 2.18 into 10 raised to power minus 18 z square upon n square joules per atom. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एनर्जी को डिपेंडिंग अपॉन दिस ऑन द यूनिट, यू विल हैव टू सी कि आंसर में यूनिट क्या दिया है, उसके अकॉर्डिंगली आपको फॉर्मूला करना है यूज. फिर उसके बाद v वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? दैट इज z अपॉन n इंटू 2.18 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर्स पर सेंटीमीटर्स पर सेकेंड. पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -27.2 अपॉन n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 अपॉन n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एंड टोटल एनर्जी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आपको बोलते हैं कि टोटल एनर्जी कैलकुलेट करो, तो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करके टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी. नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, वेलोसिटी अपॉन सर्कमफ्रेंस विच इज इक्वल टू v अपॉन 2 पाई r इज इक्वल टू माइनस E1 अपॉन h इंटू 2 अपॉन n क्यूब. फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन्स की कैसे कैलकुलेट करेंगे nth ऑर्बिट में? दैट इज गिवन एज v अपॉन 2 पाई r velocity upon the circumference, or is also given as 6.62 into 10 raised to power 15 into z square upon n cube. ठीक है, period of revolution of the electrons Tn is equal to 1.5 into 10 raised to power minus 16 into n cube upon z square. Another important is ionization energy. Ionization energy is equal to E infinity, energy of the electron at infinity, which is taken as 0 minus En. So that can be calculated as z square upon n square into 21.79 into 10 raised to power minus 19 joules per atom. ठीक है, अब अगर एक की आयनाइजेशन एनर्जी दी है और दूसरे की आपको फाइंड करनी है, तो आप रेशो ले सकते हो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू Z1 स्क्वायर अपॉन Z2 स्क्वायर इंटू N2 स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं. देन आफ्टर दैट वी कम टू द डी ब्रोगली रिलेशनशिप. सो व्हाट डज द डी ब्रोगली रिलेशनशिप टेल अस? डी ब्रोगली हमें बताता है दैट लेमडा दैट इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2em. ठीक है, सो अदरवाइज हम लोग बोलते हैं कि लेमडा दैट इज इक्वल टू h अपॉन mv. फिर हमारे पास आ जाता है हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. तो हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का क्या फॉर्मूला है गाइस? हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फॉर्मूला हो गया हमारे पास डेल्टा x इंटू डेल्टा p दैट इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई. Delta P is the angular momentum, delta x into m delta v that is equal to h upon 4 pi. ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है, पर न्यूमेरिकल्स के लिए हम लोग इक्वल टू का साइन जो है वो यूज करते हैं. ओके, ऑल्सो रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हमको एब्जॉर्ब्ड एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए दिए गाइज, तो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी दैट इज इक्वल टू व्हाट? एब्जॉर्ब्ड एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी
प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. सो इसका मतलब E दैट इज इक्वल टू E नॉट विच इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. तो अगर E जो है वो h न्यू है देन दिस इज इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस 1/2 mv². ठीक है. और इसको हम लोग लिख सकते हैं एज hc/λ विच इज इक्वल टू hc/λ नॉट प्लस 1/2 mv². ओके. क्वांटम नंबर्स आई एम श्योर कि आपको पता है कि क्वांटम नंबर्स में क्या क्या और कैसे कैसे कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है. तो व्हेन वी लुकिंग एट द क्वांटम नंबर्स में द फर्स्ट वन दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ठीक है. सो व्हाट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है दैट इज इट विल डिस्क्राइब द नेम. n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एटसेट्रा. ठीक है. सेकेंड आपके पास आ गया एजीमुथल क्वांटम नंबर. एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग किसके साथ करते हैं? डिनोट, इट इज डिनोटेड बाय L. ठीक है. सो एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है दैट विल हैव वैल्यूज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन. दैट इज इट इज गोइंग टू हैव वैल्यूज ऑफ n-1. It helps us to calculate the orbital angular momentum. जो orbital angular momentum होता है that can be calculated as under root of L plus 1 h/2 pi. ठीक है. तो यहाँ पे अगर L की वैल्यू 0 हो गई तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे इन अ सर्कुलर ऑर्बिट. और अगर L की वैल्यू 0 नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस. फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. Magnetic quantum number is going to have values. ML is going to have values -L, 0 and plus L. ठीक है. तो ये हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है. एंड देन द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज योर स्पिन क्वांटम नंबर which is going to give us the spin of the electrons. It can be clockwise or anti-clockwise. तो spin angular momentum को हम लोग calculate कर सकते हैं by the formula spin angular momentum that is equal to under root of s plus 1 h/2 pi. ठीक है. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 2 चैप्टर्स के. बाकी थर्मोडायनेमिक्स के और इक्विलिब्रियम के दे विल कम इन द इवनिंग. सो अगर आपको क्विक रिविजन करनी है तो जस्ट स्टे विद मी. योर नेक्स्ट वीडियो कम्स एट 7 o'clock इन द इवनिंग. और अभी के लिए जो आपकी वीडियो है आई एम पब्लिशिंग इट राइट नाउ.